پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اسلام کے دیوانوں، اے اہل بیت کے چاہنے والوں، آج ہم اس منظر پہ پہنچ چکے ہیں جب کربلا کی تپتی ریت پر ایک ایسا نوجوان اترا ہے جس کا عمر تو بس 13 سال کی ہے مگر جذبہ سیرو والا ہے۔ آج 7 محرم کی تاریخ ہے، وہ دن جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جگر کا ٹکڑا حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ آج کا دن ایک معصوم شہید کی درد بھری داستان سے بھرپور ہے۔ یہ کہانی صرف غم کی نہیں بلکہ قربانی، وفاداری اور ایمان کی بلندی کی مثال ہے۔ یزید کی سازشوں اور کربلا کی گھیرا بندی۔ 7 محرم 61 ہجری کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے حالت ہر گھنٹے بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، لیکن 7ویں محرم کو یزید کی فوج نے ایسا قدم اٹھایا جسے انسانیت کے اتہاس میں ہمیشہ ظلم کی سب سے بڑی مثال مانا جائے گا۔ دریائے فرات کا پانی بند کرنا۔ یزید کے سیناپتی عمر ابن سعود نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا حسین اور ان کے ساتھی فوج تک نہ پہنچ پائے، پانی کا ایک قطرہ بھی ان کے نصیب میں نہیں آنا چاہیے۔ اور یوں دریائے فرات جو کہ کربلا سے کچھ ہی دور بہہ رہے تھا، اس پر یزیدی سپاہیوں نے پہرا ڈال دیا۔ کوئی بھی حسینی اب پانی تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پیاس سے بلکتے بچے، سوچے وہ ریگستان کی تپتی ریت جہاں دن میں سورج آگ برستا تھا اور راتیں میں برف ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ علی اصغر 6 مہینے کا معصوم بچہ جس کی پیاس سے زبان سوکھ گئی تھی، ہونٹ پھٹنے لگے تھے، اتنا چھوٹا کہ بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی ماں اس کی آنکھوں سے بہت آنسو اس کی طرف کو بیان کر رہے تھے۔ سید سکینہ 4 سال بار بار پوچھتی، بابا کیا ہمیں اب کبھی پانی ملے گا؟ کچھ بچے پیاس سے بے ہوش ہو جاتے تھے، عورتیں اپنے دوپٹوں کو گیلا کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن دریا تو دشمن کی قید میں تھا۔ عورتوں کی حالت ماؤں کی ممتا چیخ رہی تھی۔ بوڑھی اماں فضا اور سید زینب رضی اللہ عنہ جیسی عورتیں بچوں کی تسلی دے رہی تھی، لیکن خود کا گلا بھی سوکھا تھا۔ نہ اس کے پاس پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کھانا تھا، لیکن ایمان مضبوط تھا۔ بزرگوں کا صبر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے بزرگ ساتھیوں نے اپنے رخ کو بدلنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر ہمارے جسم کا خون بہہ جائے، اگر ہماری ہڈیاں چور چور ہو جائیں، تب بھی ہم حسین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور یزید سے بیعت نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا صبر اور استقامت۔ جب بچوں کی سسکیاں بڑھی، عورتیں بے حال ہو گئی اور خیموں میں آنسو کی بارش ہونے لگی، تب بھی امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر جھکا کر صبر کیا اور اللہ کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو دیکھ رہا ہے، یہ سب تیری راہ میں ہو رہا ہے، تو گواہ رہنا۔ اتہاس کے سب سے بے رحم گھیرا بندی۔ 1000 سے زیادہ سپاہی دریا پر تعینات کر دیے گئے تھے۔ حسینی خیموں سے کوئی اگر پانی لینے بھی نکلتا تو تیر چلائے جاتے تھے۔ نہ تو مرد جا سکتے تھے، نہ عورت، اور نہ ہی بچے کے لیے رحم کیا گیا۔ اسلامی درشٹی سے اتنا بڑا گناہ کیوں؟ اسلام میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جانوروں تک کو پانی سے نہ روکو۔ ایک کتے کو پانی پلانے والی عورت کو اللہ جنت عطا کرتا ہے، تو سوچئے وہ کون لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے اہل بیت پر پانی بند کر رہے تھے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ عنہ ایک فرشتے جیسا شہزادہ کون تھے؟ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھتیجے۔ ان کی عمر صرف 13 سال تھی، یعنی وہ عمر جب بچے کھیلتے تھے، ماں کی گود سے جدا نہیں ہوتے اور زندگی کی حقیقت سے انجان رہتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا پھول تھا جو جنت کے باغ سے کھلا تھا۔ یہ وہ تھا جس کی نسوں میں علی کا شجاعت، حسن کی تہذیب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت دوڑ رہی تھی۔ کربلا کے میدان میں ایک ایک کر شہادتوں ہو رہی تھی۔ قاسم رضی اللہ عنہ خیمے سے ہر شہادت کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی بھائی شہید ہو گیا، کوئی چچا کا بیٹا گر پڑا، اہل بیت کے جگر کے ٹکڑے میدان میں گر رہے تھے اور امام حسین رضی اللہ عنہ ہر لاش کو اپنی گود میں اٹھا رہے تھے۔ تبھی قاسم رضی اللہ عنہ کا دل بے چین ہوا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، اب میری باری ہے۔ چچا جان، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ جب وہ اپنے چچا یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان کے لبوں پر یہ الفاظ تھے، یا اماں اذن للقتال، چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں بھی میدان میں جاؤں اور اسلام کی حفاظت میں اپنی جان قربان کر دوں۔ ان الفاظوں کو سن کر حسین رضی اللہ عنہ کا کلیجہ کانپ اٹھا، ان کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں تجھے کیسے بھیج دوں اس میدان میں جہاں موت کھیل رہی ہے؟ یہ جوان چچا کا پیار
था, क्योंकि वो जानते थे कि एक बार कासिम गया तो लौटेगा नहीं। वसीयतनामा का मोड़ जब जज्बा ईमान से टकराया। लेकिन कासिम सिर्फ जज्बाती नहीं थे, वो नसीहत के वारिस भी थे। उन्होंने अपनी कमर से एक कागज़ निकाला। वो था हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का वसीयतनामा। उसमें लिखा था, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तू देखे कि इस्लाम खतरे में है और मेरा भाई हुसैन अकेला रह गया है तो बेटा अपनी जान की परवाह मत करना, जा और इस्लाम की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाना। इसी एक ख़त ने कासिम की तकदीर लिख दी। अब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के पास इजाज़त देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हुसैन का फूटा कलेजा, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो ख़त पढ़ा और उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कासिम को सीने से लगाया और वो कहा, जाओ मेरे लाल, जाओ, लेकिन मैं कैसे जीऊँगा तेरे बगैर। और फिर उन्होंने दुआ की, या अल्लाह, इसे हुसैनी राह का मुसाफिर बना दे, इस पर शहादत की चादर उठा दे। इस वाक़या से क्या सीख मिलती है? ईमान उम्र का मोहताज नहीं होता। कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह 13 साल का बच्चा भी दुनिया को हिला सकता है। वालिद की नसीहत कभी जाया नहीं जाती। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेटे को जो वसीयत की थी वही उसकी पूरी ज़िंदगी का मकसद बनी। चाचा और भतीजे का रिश्ता कितना पाक और वफादार हो सकता है, ये सिर्फ करबला सिखाता है। यजीद की साजिश और करबला की घेराबंदी। 13 साल का सिर मैदान में उतरा। जैसे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु को जंग की इजाज़त दी, वो अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में आए। उनके बदन पर लोहे की जिरह थी, लेकिन कद छोटा था, चेहरा चमकता हुआ और आंखों में शहादत की चमक थी। जब यजीदी फौज ने उन्हें देखा तो पहले तो हंसी उड़ाई, ये कौन बच्चा है, क्या हुसैन के पास अब यही बाकी रह गए हैं? लेकिन जैसे ही तलवार चली, हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस्म से नहीं ईमान से लड़ाई लड़ी। जैसे उनकी तलवार हवा में उड़ी, दुश्मन का एक एक सिपाही कांपने लगा। उन्होंने यजीदी सिपाहियों पर इतने मजबूत वार किए कि कई सिपाहियों के सर काटे, कई ज़मीन पर गिर पड़े और कई पीछे हट गए। ये बच्चा नहीं, कोई आसमानी रहमत है। तलवारबाजी देख दुश्मन हैरान। यजीद का सेनापति उमर इब्न सऊद बौखला गया। उसने कहा, अगर एक बच्चा इतनी बहादुरी दिखा रहा है तो सोचो बड़े क्या करेंगे। तब उसने हुक्म दिया, इसे अकेले मत लड़ने दो, चारों तरफ से घेर लो। धोखे का वार, पीछे से हमला। यजीदी फौज के कई सिपाहियों ने मिलकर हज़रत कासिम को चारों तरफ से घेर लिया। पीछे से एक सिपाही ने नापाक तरीके से हमला किया और तलवार सीधी उसकी कमर पर लगी। कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से गिर पड़े। उनके जिस्म से खून बहने लगा, लेकिन ईमान एक दम बुलंद था। या अम्मा, दरख्वास्त इमदाद। जख्मी हालत में उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में पुकारा, या अम्मा, दरख्वास्त इमदाद, चाचा जान मेरी मदद कीजिए। ये आवाज़ कोई आम आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये वो सदा थी जिसने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह को झंझोड़ दिया। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु दौड़ पड़े। जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिम की आवाज़ सुनी तो खेमे की तरफ ना देखा, बाकी शहीदों की तरफ ना देखा, बस भाग पड़े। उस आवाज़ की तरफ सीना फाड़ देने वाली चीख थी। वो जब पहुँचे तो देखा कासिम ज़मीन पर पड़े हैं, चेहरा खून से लथपथ है, नन्हे से जिस्म पर तलवार के जख्म है, गोद में उठाना और आंसू बहाना। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने भतीजे को गोद में उठाया, उसका सर उसकी गोद में रखा और आंसुओं से उनकी जुल्फ़ों को धोने लगा। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, कासिम मेरे बेटे, तू भी चला गया, अब किसे देखूंगा, मैं किससे बात करूंगा। आसमान भी रो पड़ा। उस वक्त सिर्फ इंसान नहीं, करबला की रेत, हवा, आसमान सब गवाह बन गए उस मासूम की शहादत के। चारों तरफ एक सन्नाटा फैल गया। अहले बैत की औरतों की चीखें गूंजने लगी। शहजादे की सबसे पाक मौत ये कोई मामूली मौत नहीं था, ये उस बेटे की मौत थी जिसने जन्नत के सबसे ऊंचे मकाम की राह चुनी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सबक दिया कि हक़ के लिए जान देना उम्र पर नहीं, ईमान पर निर्भर है। सबक एक, अगर 13 साल का बच्चा दीन के लिए मर सकता है तो क्या हम कर रहे हैं इस्लाम के लिए। नंबर 2, जो इस्लाम आज हमारे पास है वो कासिम जैसे बच्चों की कुर्बानी से आया है, क्या हमने उसे महफूज रखा। नंबर 3, क्या हम अपने बच्चों को कासिम जैसा बना रहे हैं, बहादुर, पाक, ईमानदार। हुसैन का दर्द, मासूम भतीजे की शहादत, ज़मीन पर लहू और गोद में कासिम। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश के पास पहुँचे तो एक 13 साल की मासूम का जिस्म जख्मों से छल्ली था, चेहरा खून से ढका हुआ, जिस्म थरथरा रहा था और आंखें चचा को देख रही थी जैसे कह रही हो, मैंने वादा निभा दिया चाचा जान। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भतीजे को गोद में उठाया। उन्होंने कासिम को अपनी गोद में लिया, उनके बालों को अपने आंसुओं से धोया और कांपते हुए लबों से कहा, कासिम अब्बा हसन से मिलो, फातिमा की गोद में जाओ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले
वसल्लम ने कहा, हुसैन अब बहुत अकेला हो गया है। इस एक जुमले में करबला का सारा दर्द छुपा है। ये वो अल्फाज थे जो इमाम की टूटती हुई रूह से निकलते थे। खेमे में मचा कोहराम जैसे ही हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कासिम के लहू लुहान और टूटे हुए जिस्म को लेकर खेमे की तरफ बढ़े, अहले बैत के खेमे में चीखें गूंज रही थी। बच्चे बिलखते लगे और औरतें चिल्लाने लगी। बूढ़ी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने जैसे ही कासिम को देखा, उनका सब्र जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, ए मेरे भतीजे, तुझ पर भी ये दिन देखना था। तेरा चेहरा जन्नत के नूर से भरा था, अब ज़मीन पर क्यों है? छोटा सा जनाजा मगर सबसे भारी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के नन्हे से जनाजे को उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, जिस्म थरथरा रहे हुआ था, दिल टूट चुका था। वो जनाजा जो वजन में छोटा था मगर गम में इतना भारी था कि करबला की रेत भी थरथरा उठी। साथियों ने मदद की। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों जैसे हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे अहले बैत ने मदद की और उस मासूम शहीद को उठाया। उन्हें लेकर गए उस जगह जहाँ पहले ही हज़रत अली अकबर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमैर जैसे शहीद दफन हो चुके थे। वहीं पर कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अहले बैत के शहीदों के साथ दफन कर दिया गया। मिट्टी में मिला एक नूरानी फूल जब हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मिट्टी डाल रहे थे तो उनके लब बुदबुदा रहे थे। ए मेरे भतीजे, तूने अपनी वफ़ा का हक़ अदा कर दिया। तेरे नाम रह जाएगा और यजीद का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। सबक कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत सिर्फ एक भतीजे की मौत नहीं थी, वो इस्लाम के लिए एक मासूम की सबसे पाक कुर्बानी थी। नंबर 2, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सब्र हमें सिखाता है कि अगर मकसद हक हो तो आंसू पोंछकर भी अल्लाह के रास्ते पर चलना है। नंबर 3, आज अगर हमारे पास इस्लाम है तो वो कासिम जैसे बच्चों की जानों की कीमत पर है। 7वीं मुहर्रम की रात, भूख प्यास और आंसू, शाम ढल चुकी थी, सूरज छुप चुका था, लेकिन दर्द नहीं करबला की तपती रेत पर। अब रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन इस अंधेरे में आराम नहीं था, बल्कि भूख प्यास और आंसुओं का रसाया था। दरिया बंद प्यास का दूसरा दिन अब लगातार तीसरी दिन था जब दरियाए फुरात का पानी बंद था। कोई बर्तन में पानी नहीं था, ना बच्चे के होंठों पर नमी थी, ना माँ की झोली में कुछ दूध और ना बुजुर्ग की सांसें में राहत। प्यास अब सिर्फ जिस्म की नहीं थी, वो रूह तक उतर चुकी थी। खेमे में गूंज रहा था सन्नाटा। वो खेमे जहाँ पहले कुरान की तिलावत होती थी, अब वहाँ सिर्फ सिसकियाँ थी। वो खेमे जहाँ कभी हंसी सुनाई देती थी, अब वहाँ बच्चे पानी मांगते हुए बेहोश हो रहे थे। बच्चों का सब्र और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तसल्ली। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खेमे में घूमते हुए बच्चे और औरतों को सब्र की तालीम दी। उन्होंने बच्चों से कहा, सब्र करो मेरे प्यारे बच्चों, जन्नत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वहाँ ना प्यास है ना भूख, बस सुकून ही सुकून है। ये अल्फाज नबी के नवासे के थे, जो खुद भूखे थे, प्यासे थे, मगर सब्र की मिसाल थे। ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और सकीना की हालत। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा खुद थी प्यास से बेहाल थी, लेकिन वो बच्चों को अपने आंचल से पोंछ रही थी और कह रही थी, बच्चों बस एक रात और फिर अल्लाह हमें इनाम देगा। उम्मे कुलसूम बुजुर्ग थी मगर सबको टांटस बंधा रही थी। सैयद सकीना 4 साल की मासूम माँ की गोद में बिलख रही थी, बार बार पूछ रही थी, बाबा क्या कल हमें पानी मिलेगा? ये रात भी इम्तिहान की, सब्र की, ईमान की। हर एक शख्स के दिल में अब ये एहसास था कि शायद कल मेरी बारी है, लेकिन कोई डर में नहीं था। हर रूह सिर्फ अल्लाह की तरफ थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में नींद नहीं, दिल में तूफ़ान। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु उस रात सोए नहीं। वो एक एक खेमे में जाकर सबका हाल पूछते, हर एक को सब्र की नसीहत देते। उनका सीना छल्ली था। भतीजा कासिम अब नहीं रहा। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर उनके लबों पर था, अल्लाह का फैसला ही सबसे बेहतर है। सुबह क्या लेकर आएगी ये रात? अपने साथ दुआएं, आंसू और तकरीबन टूट चुका सब्र लेकर आई थी, मगर सुबह एक नई कुर्बानी का पैगाम लेकर आने वाली थी। कौन शहीद होगा? किस माँ का लाल अब आखिरी बार दूध मांगेगा? कौन सी बहन आखिरी बार कोई गले लगाएगी? करबला की रेत भी उस रात सुकून से सो नहीं सकी। सबक 1, जब भूख प्यास हद से बढ़ जाए तब सब्र करना ही असली ईमान है। नंबर 2, ज़ैनब और सकीना की तरह अगर हमारी बहन बेटियां इस्लाम से वफ़ादार हो जाए तो उम्मत को फिर किसी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। नंबर 3, इस्लाम आज अगर हमारे पास है तो
वो 7वीं मुहर्रम की इस रात जैसे लम्हों की कुर्बानी का नतीजा है। सबक और इबरत आज के लिए क्या सीख? हजरत कासिम की शहादत हमें बताती है कि ईमान की हिफाजत के लिए उम्र मायने नहीं रखती, जज्बा मायने रखता है। 13 साल का एक बच्चा, ना अनुभव था, ना ताकत, ना लंबा इतिहास, मगर ईमान ऐसा कि यजीद की फौज के सामने खड़ा हो गया। आज हम अपने बच्चों को मोबाइल गेम्स और दुनिया की बातें सिखाते हैं, मगर क्या कभी किसी माँ बाप ने ये सोचा कि हमारा बच्चा कासिम जैसा ईमान वाला बने? इससे सबक ये मिलता है कि हक के लिए लड़ने का कोई एक लिमिट नहीं होता। अगर नीयत सच्ची हो तो 13 साल का बच्चा भी इस्लाम का सच्चा सिपाही बन सकता है। नंबर 2, अगर इस्लाम खतरे में हो तो कुर्बानी देना सबसे बड़ी इबादत है। कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई दुनियावी नाम, शोहरत या दौलत के लिए शहादत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक बात समझी थी, इस्लाम बचेगा तो सब कुछ बचेगा, इस्लाम मिटा तो सब खत्म। आज जब इस्लाम पर सवाल उठते हैं तो हम चुप रह जाते हैं, कासिम जैसे नहीं बन पाते हैं। लेकिन सबक यह है, इस्लाम की हिफाजत के लिए जान देना, दौलत देना, वक्त देना, यही असल इबादत है। कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी हमें सिखाती है कि जब बात हक की हो तो खौफ को दिल से निकाल दो। कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने हज़ारों यजीदी सिपाही थे, मगर उनके दिल में खौफ का नामो निशान नहीं था। आज हम हक की बातों जानते हैं मगर डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेंगे, नौकरी चली जाएगी। लेकिन कासिम का किरदार बताता है, अगर तुम हक पर हो तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। डर सिर्फ गुनाह से होना चाहिए, जालिम से नहीं। और सबसे बड़ी बात, हर माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसी तालीम देनी चाहिए कि वो कासिम जैसा बन सके, बहादुर, वफादार और खुद के सच्चे बंदे। आज के दौर में माँ बाप बच्चों से कहते हैं, बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अफसर बनो। कोई ये नहीं कहता बेटा कासिम जैसा बनो, जो अल्लाह के लिए जिए और अल्लाह के लिए मरे। इससे सबसे बड़ा सबक यह है, तालीम सिर्फ किताबों की नहीं, किरदार की होनी चाहिए। अगर हम कासिम जैसे बच्चे नहीं बना सकते हैं तो फिर किस हक से उम्मत की फिक्र करेंगे? अंतिम अल्फाज, अगर आज तुम्हारा दिल रो पा रहा है, ये एक सीधी पैगाम है हर उस दिल के लिए जिसने अभी अभी कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की कहानी सुनी है, जिसने एक 13 साल की मासूम की शहादत को महसूस किया है। अगर सुनते सुनते आपकी आंखें भर आई, दिल कांप गया, गला रूह सूख गया है, तो समझ लीजिए ये कासिम की शहादत का असर है। ये उस खून का असर है जो सिर्फ मिट्टी में नहीं गिरा, आपकी रूह पर भी गिरा है। करबला की आग आज भी रूह में जल रही है। ये सिर्फ 1400 साल पुरानी वाक़या नहीं, ये जिंदा है, जलता है, चुभता है। करबला की आग आज भी उस माँ की रूह में जलती है जो बेटे को गुनाह से नहीं रोक पाती, उस बाप के दिल में जलती है जो बेटे को सिर्फ दुनिया की दौलत सिखाता है, ईमान नहीं। उस इंसान के अंदर जलती है जो हक को पहचानता है लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाता। करबला की आग सिर्फ रेगिस्तान में नहीं लगी थी, वो हर उस दिल में लगी थी जो जुल्म देखकर भी जागा नहीं था। 13 साल का शहीद कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। जब आप ये सुनते हैं तो आंखों के सामने एक मंजर बनता है। 13 साल का बच्चा, चेहरे पर नूर, बदन पर जिरह, हाथ में तलवार और दिल में सिर्फ एक जज्बा, इस्लाम को बचाना है। कासिम मैदान में आए, ना डर, ना झिझक, ना हिचकिचाहट। उनकी हर एक कदम कह रहा था, मौत से मत डरो, अगर मकसद हो तो मौत भी इज्जत दे। अपने खून से हक का परचम बुलंद करते हैं। कासिम ने सिर्फ लड़ाई नहीं, उन्होंने अपने खून से वो परचम बुलंद किया जो आज भी लहराता है हर मजलूम के दिल में, जो बताता है कि हक का रास्ता आसान नहीं होता लेकिन सबसे मुबारक होता है, जो हर मुसलमान को याद दिलाता है कि अगर इस्लाम बचा है तो किसी 13 साल के शहीद बच्चे की वजह से। आखिरी मैसेज, अगर आज तुम रोए हो तो शुक्र करो, तुम्हारा दिल अभी जिंदा है। अगर आज तुम हिले हो तो अब फैसला करो, तुम भी हक के लिए उठोगे या सिर्फ आंसू बहाकर सब भूल जाओगे। तो नाजरीन, ये था करबला का पूरा वाक़या। तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके चाहने वालों को भी इस्लामिक मालूमात हो सके। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़।